Hello guys, I hope you all are fine and you all have watched the previous video of our this chapter. So let us revise a little bit of what we had done before in the chapter. That we had completed the meaning of corporate finance. We had done the Henry Hogland का definition किया था. उसके बाद then we had completed the two types of corporate finance. आप लोग बता सकते हो मुझे कि दो types of corporate finance कौन कौन से हैं? Yes, you all can try. Book खोल के नहीं बताना है. Book खोले बिना you all can tell me what are the two types of corporate finance. Yes, first is financial decision and second is investment decisions. Good. And the last topic हमने cover किया था last lecture में वो था importance of corporate finance. Clear? So simply you can tell me now that what does corporate finance means? Yes, corporate finance means acquisition of fund plus, yes, use and application of funds. मैंने कहाँ से funds लिए हैं, acquire किए हैं, and second thing वो fund लेने के बाद, acquire करने के बाद मैं कौन से different ways में use कर रही हूँ या फिर apply कर रही हूँ वो fund को, that is called corporate finance. Clear? So now we'll start to our next topic, that is 1.3 capital requirement. Right? Chalo, now what is capital requirement? You all can tell me. सिंपल ये हेडिंग को सोच के या फिर सुन के तुम लोग को क्या पता चलता है? व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. Therefore, financial plan should be drafted, keeping in mind present and future requirement of the business, volume of capital requirement an entrepreneur has to take into consideration, fixed capital requirement and working capital requirement. Yes, अभी सबसे important बात अगर तुम लोग को बता दूं ना कि ये कैपिटल रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम जो धीरे धीरे बिजनेस की बात कर रहे हैं. So this is the main thing. If we don't have capital, then we cannot start the business. अच्छा चलो, मुझे बिजनेस चलाने का मुझे आइडिया तो आया, फाइन. मुझे बिजनेस चलाने का आइडिया आया. मैंने सोचा भी कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा. मेरे पास इतने लेबर्स मैं रिक्रूट कर लूंगा. मेरे पास इतने टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज रहेंगे. ये सब मैंने सोच के रखा है. बट व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास अगर कैपिटल ही नहीं है या फिर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो आई कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस. मेरे पास विलिंगनेस है, मेरे पास डिजायर है, सब है, बट आई डोंट हैव द कैपिटल. I cannot complete my wish, my demand and my willingness also. So the most important thing, the most important topic is capital requirement. Fine. Capital requirement means it will help you to understand that how much a business needs a capital, the finance to run the business till the end or till its whole life. So it will help you to understand other chapters also, that how to start the business, how to acquire capital, from which sources, from which different sources I am going to get the capital. Fine. So you can say as जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे ही बिजनेस में कैपिटल सर्कुलेट होता है.
If capital is not there, if capital is not able to circulate in my business, then at the end I will face many losses and I have to liquidate my company. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, चलो अभी ये सोच लो कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है. फाइन, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने ये सोच लिया है. बिजनेस को हम व्यापार भी बोल सकते हैं. ओके, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. मैंने सोचा पहले स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए आई हैव टू थिंक फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस आई हैव टू स्टार्ट. तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. उसके बाद चलो ये भी सोच लिया मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, पर ये मैं सोचूंगी किस बेसिस पे. तुम लोग को पता है कि मार्केट में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, और द सेकेंड थिंग, व्हाट आर द नीड्स ऑफ माय कंज्यूमर्स. उस हिसाब से मैं मेरा प्रोडक्ट बनाऊंगी और मेरा वो बिजनेस वो फील्ड में स्टार्ट करूंगी. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, आफ्टर चूजिंग दिस, चलो मैंने सोच भी लिया कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है. आफ्टर चूजिंग द फील्ड, नाउ दैट एंटरप्रेन्योर हैज टू रिमूव द एनालिसिस रिपोर्ट. जैसे हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स चेक करते हैं, वो रिपोर्ट निकालना पड़ता है. अभी फिजिबिलिटी मतलब क्या? मीन्स एन एक्सपर्ट गिव्स द रिपोर्ट on how to start the business and how to run the business. इसे हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं. अभी मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगी, मैं बिजनेस कैसे आगे चलाऊंगी, वो सब एक्सपर्ट्स मुझे बताएंगे. वो एक रिपोर्ट, एक एनालिसिस होगा किस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, वो फील्ड में कितनी आगे रिक्वायरमेंट है. बाद में उसके बाद मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब चीजें वो पहले से डिसाइड होगी. इनकॉर्पोरेट ऐसे ही नहीं हो जाता बिजनेस. इट इज टफ, बट वी नीड द मेन थिंग, दैट इज कैपिटल. फाइन, चलो ये रिपोर्ट भी मिल गया मुझे. ये रिपोर्ट मिलने के बाद क्या, आफ्टर दिस रिपोर्ट हम सब, मेरे साथ जो है मेरे इन्वेस्टर्स रहेंगे या फिर मेरे पार्टनर्स रहेंगे, हम सब साथ में बैठ के विल डिस्कस कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा हमारी बिजनेस को, ये बिजनेस में हम कितना प्रॉफिट वापस लगाएंगे, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा. देन आई विल इन्वेस्ट, फिर मुझे प्रॉफिट होने वाला है. आफ्टर दैट प्रॉफिट आई एम गेटिंग, आई कैन again retain that profit into my business again. Clear? Now इसे जैसे हम बताते हैं कि मैंने वो फील्ड चूज कर लिया, तो वो फील्ड में मुझे कितना रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, वो कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी डिसाइड हो गया. तो वो कैपिटल मुझे कौन से डिफरेंट फील्ड से मिल सकता है. जैसे मैंने लोन ले लिया, या फिर मैं कोई शेयर्स निकाल रही हूँ, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, राइट. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो तुम लोग को पता ही होगा ना पहले से क्या है. इक्विटी शेयर्स मोस्टली 10 रुपीज से स्टार्ट होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देयर आर फिक्स्ड कैपिटल शेयर्स, वो उसमें फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, बट इक्विटी शेयर्स में होता है. प्रेफरेंस शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है, राइट. सो देयर आर डिफरेंट वेज फ्रॉम वेयर आई कैन अक्वायर द कैपिटल. फाइन, अभी चलो ये सब डिसाइड हो गया. ये सब डिसाइड होने के बाद मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल कितना होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए. When this thing is decided, after that I can start my business. Clear? दो टाइप के कैपिटल है, फिक्स्ड एंड वर्किंग. अभी फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, ये देखते हैं. फिक्स्ड कैपिटल means which is used for buying fixed asset
which are used for a longer period of time in the business. It stays in the business for a long period, almost permanently. Like example, capital used for purchasing furniture, land, building, plant, machineries, etc. अरे भाई हम घर में रहते हैं, तुम लोग कॉलेजेस में क्लासेस में जाते हो तो वहां पे बेंचेस रहती है, हमारे घर पे सोफे रहते हैं, बेड्स रहते हैं, तो वो एक हमारा फिक्स्ड असेट हो गया। वैसे ही बिजनेस में भी फिक्स्ड असेट होता है, जैसे हमारे बिजनेस में लैंड होती है, बिल्डिंग होता है, उसमें भी फर्नीचर्स होते हैं, प्लांट और मशीनरीज होते हैं। मशीनरीज क्यों? न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज हम बिठाएंगे क्योंकि मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, आउटपुट निकले और उससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं, राइट? तो फिक्स्ड कैपिटल क्लियर है कि जो बहुत टाइम तक, फुल लाइफ टाइम तक नहीं चलने वाला फिक्स्ड असेट, बट ये चीज एक लॉन्गर टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, जिससे मैं बहुत सारा काम या फिर प्रोडक्शन ले सकती हूँ, राइट? जैसे हमारे घर पे भी हम फ्रिज है, ओवन है, फर्नीचर्स हैं, ये सब बहुत लॉन्ग टाइम, अराउंड 10 years 15 years तक चलते हैं, राइट? नेक्स्ट we'll see the factors of fixed capital. चलो, initial planning of fixed capital requirement is made by the company promoters. Yes, promoters. तुम लोग ने 11th में पढ़ा था promoters क्या है? A person who organizes or provides the money for an event. अभी मैं और मेरे पार्टनर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, they are called promoters, right? अभी फर्स्ट क्या है? लिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स नीडेड बाय द कंपनी। मुझे कितने फिक्स्ड असेट्स चाहिए वो मैं देखूंगी। कॉस्ट ऑफ दिस असेट्स आर एस्टिमेटेड। अभी कितने असेट्स है, मुझे कितने लेने हैं, कितनी मशीनरीज लेनी है, लैंड लेना है, बिल्डिंग लेना है, वो सब की कॉस्ट तो मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा तो पता होगा कि ये मशीनरी भाई इतने का आएगा, ये लैंड मुझे ये जगह पे लेनी है तो यार इतने में मुझे पड़ेगा। तो इट इज एस्टिमेटेड। वो एक एनालिसिस होता है, एक रिपोर्ट बनता है, उसके अंदर सब लिखा होता है कि इतनी मशीनरी चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, ये लैंड इस जगह पे लेना है तो वो ये लैंड का इतना पैसा मुझे देना है। नेक्स्ट इज कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ लैंड। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मुझे बिल्डिंग्स बनानी, अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइट में हूँ तो वहां पे मेरा बिजनेस चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए भी मुझे कितने पैसे लगेंगे, बाद में वो बेचने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, राइट? कॉस्ट ऑफ प्लांट, मशीनरी, सब क्लियर है। ये सबका एक पेपर पे एनालिसिस होगा, फिर उसका टोटलिंग करके मुझे हर एक पार्टनर को कितना इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, वो सब प्री डिसाइडेड होगा। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द मेन थिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। यस, वी स्टार्ट। चलो, फैक्टर्स कौन से हैं यार? तुम लोग भी पढ़ सकते हो, मैंने शेयर किया है। यस, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है? अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मुझे बहुत सारा फिक्स्ड असेट चाहिए, बट मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ट्रेडिंग मीन्स जो मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा, ट्रेड करेगा, तो they don't need a huge investment in that business. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो सब चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेनर चाहिए, मुझे लैंड को रेंट देना है, मुझे लेबर को वेजेस एंड सैलरीज देनी है, मुझे एंटरप्रेनर को प्रॉफिट देना है, एंड कैपिटल को इंटरेस्ट देना है। ये सब चीजें चाहिए, तो मुझे बहुत सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। मशीनरीज लेने तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, बट ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस। when where a business firm is set up to carry on large scale operation, its
fixed capital requirements are likely high. Yes. अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे शॉर्ट रन प्रोडक्शन करना है या फिर शॉर्ट स्केल पे चलाना है, तो मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. हाँ, जरूरत है बट कम. बट यस, आई एम रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बेसिस. देन यस, आई नीड द फिक्स्ड कैपिटल requirement, and to buy that fixed capital I need a huge investment. Clear? Next is scope of business. Formed to carry on production or distribution on large scale, such businesses would require more amount of fixed capital. Simple है. साइज ऑफ बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस में डिफरेंस कुछ नहीं है. जितना प्रोडक्शन में ज्यादा करूंगी, जितना बड़ा मेरा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा मुझे मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए. फिक्स कैपिटल उतना ज्यादा ही लगेगा. नेक्स्ट क्या है? वाओ, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. If entrepreneur decides to acquire asset on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. चलो भाई, इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचा था कि मैं ले लूंगा, मैं खरीद लूंगा वो बिजनेस, सॉरी कैपिटल को, मशीनरीज को. बट फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, हम यही इमेजिन करते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि मुझे मेरे फिक्स्ड असेट्स जो है उसे रेंटल बेसिस पे लेना पड़ा या फिर लीज पे, जिसे हम भाड़े पे लेना बोलते हैं. तो मुझे एक साथ में पैसे तो नहीं भरने पड़ेंगे ना. चलो एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को कि मुझे एक फ्लैट पसंद आया है और वो फ्लैट खरीदना है. तो वो फ्लैट 1 करोड़ का है, पर मेरे पास तो उतना कैपिटल है नहीं. तो मुझे यार वहीं पे रहना है, मैं क्या करूं? आई वॉन्ट टू स्टे देयर ओनली. आई लव्ड दैट फ्लैट. देन व्हाट? मेरे पास कैपिटल भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, 1 करोड़ रुपए कैश चाहिए, बैंक में भी नहीं है. क्या करेंगे? The next option I have, I can stay on rent there. या फिर मैं EMI पे कर सकती हूँ वो लोगों को कि मैं हर महीने मैं थोड़ा थोड़ा पे करके मैं इसका लैंड के पैसे, फ्लैट के पैसे भर दूंगी. राइट? ऐसे ही हम ये इमेजिन करते हैं कि वहां पे कुछ इन्वेस्टर्स कम पड़ गए मुझे, तो मेरे फिक्स्ड कैपिटल, मेरे पास अभी जो कैपिटल नहीं था, तो मैंने फिक्स्ड असेट्स जो थे वो मैंने रेंटल बेसिस पे ले लिया. तो वो जो मुझे 50 लाख का खर्चा होने वाला था, बट नाउ अभी मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है वो फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए. तो वो खरीदने के लिए मैं सिर्फ रेंटल बेसिस पे लेती हूँ. तो रेंटल बेसिस पे तो मुझे कम पे करना पड़ेगा ना. बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगी मैं पैसे. प्रॉफिट होगा मैं पैसे दे सकती हूँ, प्रॉफिट होगा मैं दे सकती हूँ. बट नाउ एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम आई डोंट हैव. जैसे मैंने वो फ्लैट की बात की, वैसे ही मैं फिक्स्ड असेट्स में भी कर सकती हूँ कि अभी एंड ऑन द स्पॉट प्रेजेंट में मेरे पास फिक्स्ड असेट्स को देने के लिए या फिर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं अभी रेंटल बेसिस पे लेती हूँ. फिर मेरा बिजनेस चलेगा, मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं आगे पे करके मैं फिक्स्ड असेट्स खरीद सकती हूँ. क्लियर हो गया? अपना 5th पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. ये अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है. इस पे हम बिल्डर का एक एग्जांपल तुम लोग को देती हूँ, बाद में हम पढ़ते हैं. बिल्डर का एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि बिल्डर जब भी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है तभी उसको सब कुछ हैंडल करना होता है. वो प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, बिल्डिंग खड़ा करना है, उसके अंदर XYZ एनी डैम थिंग. वो बिल्डर है तो उसे सब कुछ अरेंज करना है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग. राइट? चलो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया.
उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो तुम लोग को समझाती हूँ। अगर एक बिल्डर एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहता है, वो खड़ा करता है, तभी उसे बहुत सारे प्लांट्स मशीनरीज चाहिए, बहुत सारे लेबर्स चाहिए। तो इसमें से अगर मुझे थोड़ा सा खर्चा कम करना है या फिर बचाना है, मेरे फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या करेंगे कि वो बिल्डर ये सोचेगा कि मैं एक बंदे को इलेक्ट्रिशियन का या फिर ये पूरे बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन का कॉन्ट्रैक्ट ये इलेक्ट्रिशियन को दे देता हूँ, प्लम्बिंग का काम मैं दूसरे बंदे को दे देता हूँ, कि मुझे जितना राउंड ऑफ प्रॉफिट होने वाला है, पैसे मिलने वाले, उसमें से थोड़ा तुझे दे दूंगा। अभी हम ये सोच लेते हैं कि मुझे अराउंड 5 करोड़ का वो बिल्डिंग बनने वाला है, तो उसमें से तुझे 50 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिशियन वर्क। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने वो बंदे को दे दिया, जो भी XYZ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके साथ, या फिर 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो भी मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जस्ट यू हैव टू इमेजिन मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसे दे दिया, अभी प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट ये प्लम्बर को दे दिया, अभी पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया, इट इज बिल्ट ऑलरेडी, तो अभी इलेक्ट्रिशियन का काम वो इलेक्ट्रिशियन को जो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो करेगा, प्लम्बर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो करेगा, पर वो मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो मुझे जैसे बनवाना है वैसे। बट सबसे मेन चीज, सब कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों को बोलते हैं, पर उसमें फायदा मेरा हुआ क्या कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक काम के लिए जितने भी मशीनरीज की जरूरत थी वो सब मुझे लेने नहीं पड़ेंगे। प्लम्बिंग की जिसकी जरूरत थी, प्लम्बर का काम जो होता है, उसे जितने भी मटेरियल की जरूरत थी वो मुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो ये सब पे मेरा खर्चा बच रहा है। ये लोग को तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने वो लोग को अरेंज करके ये लोग को पैसे भी दे दिए कि तुम लोग को इतने पैसे मिलेंगे, तुम लोग ये बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम कर दो, तुम लोग ये बिल्डिंग में, तू ये बिल्डिंग में प्लम्बर का काम कर, राइट। बट ये सब चीज के लिए मुझे जो मशीनरीज चाहिए थी, मुझे जो बंदा चाहिए था काम करने के लिए, उसे मैं सैलरी और वेजेस देती थी। उससे अच्छा मैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही दे दूं ना। मैंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ये लोग को, देन आई एम फ्री कि ना यार ये दोनों करेंगे, मैंने वो लोग को उनके हिसाब से वो लोग को पैसे दे दिए। मेरा खर्चा वहां पे थोड़ा कम हो गया कि उतने सारे फिक्स्ड असेट संभालने भी नहीं और रखना भी नहीं और मैं यूज भी नहीं करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? यस। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इफ ओल्ड equipment and plants are available at lower prices, then then it would reduce the need of investment in fixed assets. अगर मुझे पुराने, मतलब वो सेकेंड हैंड पे मिलते हैं, पता है तुम लोग को तो सेकेंड हैंड माल पसंद नहीं है, मोबाइल फोन भी तुम लोग खरीदते हो ना तो नया ही चाहिए यार, सेकेंड हैंड शी कौन लेगा, ऐसा है तुम लोग की सोच। बट यू नो इट इज समथिंग गुड। अगर मुझे कहीं पे मेरी इन्वेस्टमेंट बचानी है, मेरे कंपनी में प्रॉफिट होना है, तो मशीनरी सेकेंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो यार, मुझे प्रोडक्शन से मेरे कंज्यूमर की नीड्स को कंप्लीट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन द सेकेंड हैंड फिक्स्ड असेट्स। हाँ, पर द थिंग इज, मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं जो प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, जो मेरे प्रोडक्ट, मेरे कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट को यूज करें। ये मशीनरीज की हम फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं, देन इट इज गुड कि वो पुराना नई टेक्नोलॉजी है। अभी चलो वो OLX है, पता है वो OLX पे हम क्या करते हैं, वो चीजें जिसे नहीं चाहिए वो उस पे बेच देता है और कोई खरीद लेता है। वैसा ही है
इट्स ओके, व्हाई टू वेस्ट मोर मनी, राइट? तो मैंने वो ही प्रोडक्ट मुझे सेकेंड हैंड में, अगर मैं बता दूं, वो एक मुझे मशीनरी चाहिए, वो अगर 50 लाख का है तो मुझे 25 लाख में मिल रहा है, तो वो इट इज नॉट बैड। वो 25 लाख जो मेरे बच गए, वो मैं कंपनी में लगा के अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकती हूँ। सो इट इज नॉट बैड टू सेव मनी and again put that profit again into my company. Clear? Next is acquisition of assets on concession rate. गवर्नमेंट कभी कभी कंसेशन दे देती है लैंड बिल्डिंग मटेरियल्स पे, एक फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है उस पे दे देगी। सो इट इज नॉट बैड इफ दे आर गिविंग कंसेशंस ऑन लैंड एंड मटेरियल्स, पर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और रोड्स रेलवेज बनाते हैं तभी होता है ये सब, प्राइवेट में नहीं मिलेगा कुछ भी, राइट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है तुम लोग का इंटरनेशनल कंडीशंस। यस, विल सी, जस्ट वेट अ मोमेंट। चलो ये समझा देती हूँ तुम लोगों को। इंटरनेशनल कंडीशन मतलब दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। अभी और मेरा लार्ज स्केल पे बिजनेस चल रहा है, तो मैं सोचूंगी कि मेरे प्रोडक्ट्स क्यों बाहर के साइड ना जाए, पर वहां पे भी कॉम्पिटिटर्स है, यहाँ पे भी कॉम्पिटिटर्स है, तो वो चलना तो चाहिए। तो वहां पे एक इंटरनेशनल वॉर जैसा भी हो सकता है, बट यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस, जिससे बाहर के इन्वेस्टर्स भी मेरे कंपनी में आके इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग को भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी प्रॉफिट होगा। क्लियर? सो we'll read. This factor is very significant, particularly in large organizations carrying business international levels. For example, क्या है, companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is the shortage of the material. अभी क्या है, वो war होता है ना, तो उसके बाद मैं सोचूं कि वो मेरा कॉम्पिटिटर ले, उससे पहले ही मैं नई टेक्नोलॉजी वाला मशीनरीज में फिक्स्ड असेट ले लूं, तो मुझे और इन्वेस्टमेंट करना पड़े। ये सब एक फैक्टर्स है जो मेरी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड इन इकोनॉमी। It gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of business firms, right? So ग्रीन सिग्नल किसके लिए? for in case large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. हाँ, अभी मैं जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे फिक्स्ड असेट्स में करूंगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। यस, यू ऑल गॉट राइट। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन ट्रेंड। तुम लोग के बहुत सारे नखरे हैं, लाइक मुझे आज ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, मम्मी आज ये फैशन निकला है, मेनी डिफरेंट तुम लोग की डिमांड बोलो, डिजायर बोलो, वो एक एक सेकेंड पे तुम लोग की डिमांड चेंज होती है, मुझे पता है। मेरे दोस्त ने ये मोबाइल लिया, मुझे यही फोन चाहिए। अरे यार, अभी तो तुझे 6 महीने पहले नया लेके दिया है, वापस तुझे नया चाहिए। ये है पॉपुलेशन का ट्रेंड, ये है फैशन चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेसेस एक्सपांड हो रहे हैं। हाँ, ये अच्छी चीज है, बट ज्यादा खर्चा करना वो भी अच्छी चीज नहीं है। बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं, वो लोग को प्रॉफिट हो रहा है, पर तुम लोग के तो खर्चे ही हो रहे हैं यार। फिर देखो, हम पढ़ लेते हैं एक बार। When population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand the business. Example, automobile industry, electronic goods, manufacturing, ready-made garments, etc. जैसे तुम लोग अभी फटे जीन्स पहन के घूमते हो ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कोई भी आता है ना फटी जीन्स पहन के, तो उनको तो पहले ही बाहर निकालना है। यस, सो द थिंग इज, वो फटी हुई जीन्स की भी एक स्टोरी है, बाद में कभी बताऊंगी, बट इट इज लाइक
कि वो कोई एक्टर पहन के घूमेगा ना, अरे यार ये फैशन है, पर वो बेचारे गरीब बंदे ने पहना है, उसके पास कपड़े नहीं है, वो फटे हुए कपड़े पहन रहा है, तो यार शी, इसके पास पैसे नहीं है कपड़े लेने के लिए। अरे यार तू दिला दे, पर अच्छे वाले, फटे हुए नहीं। इट इज द थिंग दैट योर थिंकिंग इज डिफरेंट, कि वो एक्टर पहन के खड़ा है तो वो एक ट्रेंड है, वो एक फैशन है ना। बाकी वो बेचारा पहन के, फटा हुआ पहन के घूम रहे थे यार, कि कैसे फटे हुए कपड़े पहने, ऐसे तुम लोग के डायलॉग होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस। तुम लोग का प्रेफरेंस क्या है, हमारी प्रेफरेंस, एंड कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, वो लोग की डिमांड क्या है, वो लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चाहिए। अभी क्या एग्जांपल में दिया है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, industries provide good and services which are good in demand, which will require large amount of fixed capital. क्यों आजकल बहुत वाईफाई की, नेट की, मोबाइल फोन की बहुत जरूरत है, सबको, सबको है। मैं भी यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट नॉट अनयूजफुल थिंग्स पे नहीं यूज करना है। कहाँ फोन है सिर्फ बात करने के लिए, तुम लोग की गेम्स खेलने के लिए नहीं है, या फिर तुम लोग के फालतू व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए नहीं। इट इज नॉट गुड। टाइम पास मत करो यार, पढ़ो। बट इससे एक बिजनेस वाले को अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रास्प करने के लिए, इससे वो लोग एक्सपांड करते हैं अपना बिजनेस। क्लियर। या लास्ट पॉइंट है ये तुम लोग के फिक्स्ड फैक्टर्स का, that is competitive factors. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. Yes, सिंपल है यार। अगर ए कंपनी ने कुछ बनाया है नया, तो बी कंपनी को भी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट में से या फिर कंपटीशन में से निकल जाएगा। अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को। किंडर जॉय है ना, वो एक टॉय बनाता है, ये टॉय के साथ उसका किंडर जॉय का एक प्रोडक्ट आता है, वो बच्चे लोग को बहुत पसंद है। उसके साथ कॉम्पिटिटर में कौन आया, डेयरी मिल्क कंपनी आई लीकेबल्स लेके। अरे यार उसे कॉम्पीट करना था, इसलिए उसने भी डेयरी मिल्क लीकेबल्स निकाले, एंड विथ द टॉयज, उसके अंदर टॉयज भी आते हैं। कुछ नहीं होता यार, अंदर सिर्फ चॉकलेट ही होती है, बट जस्ट टू अट्रैक्ट देम वो दोनों एक कंपटीशन लेवल पे आ गए। ये किंडर जॉय ने निकाला तो इसने भी निकाला। उसके बाद जब डेयरी मिल्क ने लीकेबल्स निकाला, उसके बाद किंडर जॉय ने बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंट प्रोडक्ट निकाला, कि गर्ल्स का पिंक है तो बॉयज का ब्लू। ये कंपटीशन हो रहा है, बट टू रिमेन इन द मार्केट, कॉम्पिटिटर्स को फेस करना बहुत जरूरी है। इफ आई कांट फेस देम, तो मेरा कंपनी धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाएगा। बिकॉज जितने ज्यादा अट्रैक्टिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे, उतने ज्यादा हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Yes, which is used to carry out the day-to-day business activities, right? That would be needed to ensure smooth functioning of business firms. Business firms require fund to store adequate raw materials in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished good. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit basis. Goods sold or on credit do not fetch cash immediately. अच्छा, अभी वो कैश मैंने दे दिया तो वो तो चलेगा यार, कैश ऑन इन हैंड दे दिया। बट अगर वो क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया है, तो वो
मुझे तुरंत पैसे नहीं मिलेंगे, आफ्टर सम टाइम और सम डेज आई विल गेट द money. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtor. वो अगर क्रेडिट बेसिस पे वो बंदा लेके गया है तो उसके पास से पैसे लेने के लिए, कैश कलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा. कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड. क्लियर? अभी सिंपल चीज वर्किंग कैपिटल मतलब तुम लोग समझ लो कि जो डे टू डे मेरे बिजनेस में काम आता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जैसे मेरा रॉ मटेरियल्स है, मैं वॉट एवर एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बना रही हूँ, वो एक्सवाइजेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे जितने भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, दैट इज माई वर्किंग कैपिटल. क्लियर? अभी ये एक साइक्लिकल फ्लो है वर्किंग कैपिटल का, वो एक बार देख लेते हैं. उसमें इन्वेंट्रीज है, सेल्स है, रिसीवेबल है, कैश है, ऑपरेशंस है, ये सब हम पढ़ते हैं. चलो वील रीड. अ बिजनेस फर्म नीड्स टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड. Prominent share of this fund is used to buy raw materials and remaining part is kept available to pay wages and expenditures. Thus, the working capital which was in the form of cash is converted into inventories. Clear? Raw materials are converted into work in process and then to finished goods. राइट? मेरे पास जो कैपिटल था, कैश था, उसको मैंने इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया. उससे मैंने रॉ मटेरियल्स लिए, रॉ मटेरियल्स लेने के बाद उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाला, जिससे मेरा फिनिश गुड बन गया. और फिनिश गुड बनने के बाद मैं क्या कर रही हूँ? आई एम प्रिज्यूमिंग द गुड्स टू बी सोल्ड on the credit basis or on the cash basis. Normally, account receivables have maturities for specific days after billing date. Billing date मतलब हम ड्यू डेट की बात करेंगे. वो क्रेडिट बेसिस पे अगर मैंने किसी को मेरे गुड्स दिए, अभी होलसेलर मेरा प्रोडक्ट लेके गया है बेचने के लिए, एक लॉट में लेके गया है, वो लेके जाएगा तो वो मेरे पे, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक क्रेडिट बेसिस पे लेके गया. तो क्रेडिट बेसिस पे तुम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो कि वो एक रिसीवेबल का अकाउंट बनता है. वो ड्यू डेट होता है, बिलिंग डेट होता है, वो डेट तक वो लोग को पैसे वापस दे देने पड़ते हैं. राइट? Collection of receivables bring back the cycle to cash. Right? A part of cash may be used to pay creditors, pay income tax, and declare dividend, and the rest of it is put into circulation again. क्लियर है यहाँ तक? वो क्रेडिट बेसिस पे पैसे मुझे मिल गए, उसके बाद क्या तुम लोग बता सकते हो यार? वो क्रेडिट बेसिस के बिलिंग डेट मुझे आ गया, बाद में मुझे पैसे मिल गए, तो मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिए. यस. मैंने फिर इनकम टैक्स पे कर दिया. यस. और मैंने मेरे शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर भी कर दिया डिविडेंड देना है, और जो बाकी बचा है वो वापस मैंने रिटेन करके मेरे बिजनेस में डाल दिया. क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. पहले हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस. चलो पढ़ते हैं. Firms engaged in manufacturing essential product of consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash flow in firm to take care of the liabilities. Yes. अभी फर्म्स जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंजम्पशन के लिए, वुड नीड व्हाट? वर्किंग कैपिटल कम होगा, डे टू डे चाहिए ना, तो वो एक दिन में मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं लूंगी, ज्यादा से ज्यादा
मैं उसे स्टोर करके नहीं रख सकती, वो रॉ मटेरियल्स खराब हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स खरीदा, उसे प्रोडक्ट बना, उससे प्रॉफिट हुआ, वो वापस प्रॉफिट मैंने वो प्रॉफिट से मैंने वापस रॉ मटेरियल खरीदा, वापस प्रोडक्ट बनाया। दिस सर्कुलेशन होता रहेगा। नाउ व्हाट इज पब्लिक यूटिलिटी? दिस कंसर्न प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अभी इसमें मेरे फिनिश गुड्स बन गए, उसके बाद मुझे भेजना तो पड़ेगा ना मेरे गुड्स। यस, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस। द साइज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मेरा बिजनेस अगर छोटा है तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर मेरा बिजनेस लार्ज स्केल बेसिस पे है तो आई नीड of the more working capital because production और मेरा output भी ज्यादा होगा। Volumes of sales. This is the most important factor affecting size of the working capital. The volume of sale and size of working capital are directly related with each other. If volume of sale increases, there is an amount of working capital and vice versa. जितना ज्यादा मेरा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सप्लाई करूंगी, और जितना सप्लाई होगा और मेरी डिमांड मार्केट में बढ़ गई तो वो अगर मेरे सेल्स बढ़ रहे हैं तो मेरा वर्किंग कैपिटल का साइज भी बढ़ता जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सेल एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। क्लियर हो रहा है? यस। नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का? प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या है? द प्रोसेस of converting raw material into finished good is called production cycle. Yes, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश्ड गुड बनाया, फिर मैंने बेचा, दैट इज माय प्रोडक्शन साइकिल। रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड मैंने कहाँ से लिया? वो प्रोडक्ट को मैंने पहले वो अक्वायर करने के लिए तो मेरे पास कैपिटल है, कैपिटल से मैंने वो रॉ मटेरियल अक्वायर किया, अक्वायर करने के बाद उसे मैंने वर्क इन प्रोसेस में डाला। आफ्टर वर्क इन प्रोसेस आई एम गेटिंग द finished good, and that finished good is completed, and after that completion of that cycle it is called a production cycle. If the period of production cycle is longer, then the firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी उतना ज्यादा मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जितना कम उतना कम चाहिए मुझे वर्किंग कैपिटल। क्लियर? यस। बिजनेस साइकिल। when there is a boom in the economy, sales will increase. This will lead to an increase in investment in stock. This requires additional working capital. During recession, sales will decline and hence the need of working capital will also decline. Right? मेरे कंपनी में लेबर्स भी जो काम करते हैं ना, वो भी एक वर्किंग कैपिटल ही है गाइस। जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगी, जितना बड़ा मेरा लार्ज स्केल बेसिस पे मेरा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा मुझे लेबर्स चाहिए। वैसे ही जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, उतना ज्यादा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। क्लियर? अभी बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो जब भी हमारा वो डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तभी पेटीएम का बूम पीरियड था। पेटीएम, उसके पहले किसी को पता भी नहीं था, बहुत कम जन को पता था, बट पेटीएम का बूम पीरियड क्यों था? क्योंकि उसने सबको क्रेडिट बेसिस पे पैसे देना स्टार्ट कर दिए, तो वो उसका इतना बूम पीरियड हो गया, उसे इतना प्रॉफिट हुआ कि अभी ईच एंड एवरी वन हैव पेटीएम इन देयर मोबाइल फोन। रिसेशन कभी ना कभी आ जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो एक टाइम तक चलेगा,
जैसे हम तुम लोग ये देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, तो पहले एक्सपांशन हुआ, फिर वो पीक आ गया, फिर वो प्रोडक्ट यूज यूज कर करके सब लोग थक गए यार, अभी कुछ नया चाहिए, तो वो मेरे कॉम्पिटिटर ने कुछ नया लेके आया, तो मेरा रिसेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, वो ट्रॉफ ट्रॉफ स्टार्ट हुआ, और वापस मैंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, वो पीक पे आ गया, और वो मेरे कॉम्पिटिटर का रिसेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, फिर वापस उसने कुछ नया निकाला, मेरे कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट निकाला, तो मेरा रिसेशन हो गया, तो वो ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है, पर वो कब होगा, जब मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, तो वो एक्सपांशन और पीक पे आएगा, फिर वो रिसेशन पे जाएगा, वापस वो एक्सपांशन और पीक पे आएगा, बट दिस शुड बी देयर, अगर ये चीज नहीं होगा तो वो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। आई नीड टू कम्पीट यार, पर कम्पीट मतलब मुझे झगड़ने नहीं जाना है, मुझे सिर्फ वो उसको एक टफ कंपटीशन देना है कि वो कॉम्पिटिटर से मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए और मुझे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। If the firm does not get credit facility for purchases but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. वापस पढ़ते हैं, सुनो. If the firm does not get credit facility for purchase but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital, right? अभी वो क्रेडिट बेसिस पे नहीं दे सकता, या फिर वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है, बट थोड़ी लिबर्टी दे रहा है, इज गिविंग अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत, क्योंकि मुझे कैश तुरंत नहीं मिलेगा ना, क्लियर। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेसेस आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, then requirement of cash will be less, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज फेवरेबल है, मुझे कैश मिल रहे हैं, तो वो वहां पे मुझे कैश की वहां पे रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग में है, thus the working capital requirement will be reduced. परचेस में अगर मेरे रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हो गया, तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, ज्यादा चीज की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल फिर मैं कम कर दूंगी, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर परचेस करने में मेरे पैसे मुझे थोड़े कम हैं, तो मैं ज्यादा वर्किंग कैपिटल ले लूंगी यार, क्लियर है। नेक्स्ट है तुम लोग का क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। इफ द क्रेडिट पॉलिसी इज साउंड, it is possible for the company to improve its cash flow. If credit policy is liberal, it creates a problem of collection of fund, right? अभी सुनो, जैसे क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन पॉलिसी, ये सब इंक्लूड करता है, क्योंकि इफ क्रेडिट पॉलिसी इज साउंड, थोड़ा इजी है, तो it is possible for a company to improve its cash flow. थोड़ा इजी है ना कैश फ्लो, तो वो इनवर्ड और आउटवर्ड कैश फ्लो वो बहुत इजीली सर्कुलेट कर पाएगा, बट वो थोड़ा टफ हो गया, तो वो मेरे कलेक्शन ऑफ फंड के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्लियर। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फंड of a firm will increase with a with increase with of a firm, right? A growing company needs fund continuously to support large scale operation. जितना ज्यादा मैं मेरे कंपनी को ग्रोथ और एक्सपेंशन दूंगी, उतना ज्यादा मेरे फर्म के लिए वर्किंग कैपिटल लेना, इंक्रीज करना वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं इंक्रीज करूंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा, एंड सप्लाई विल
increase, then I will earn the profit. Next क्या है तुम लोग का? Management ability. The requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory call for higher level for working capital. अगर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, तो मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, या फिर वर्किंग कैपिटल भी कैसे चलेगा? आई कैन नॉट वर्क. जैसे अ फर्म स्टॉकिंग विथ हेवी इन्वेंट्री, मेरे पास पैसे बहुत सारे, एक हायर लेवल पे मैंने मेरे कैश को इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट किया. इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, स्टॉक में कन्वर्ट किया है. बट अगर वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेरा स्टॉक पड़ा पड़ा बिगड़ जाएगा यार. वो वेयर हाउस में मैं कब तक रखूंगी? अगर बाई चांस वो ईटेबल प्रोडक्ट में हम बात करेंगे तो वो तो बिगड़ जाएगा. तो there should be a good coordination, there should be a managing ability, management ability होना चाहिए, जिससे मैं मेरे कंपनी में प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से कर पाऊँ. सबसे अच्छा मुझे वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल एक बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, उससे मैं फिनिश गुड बनाऊं, एंड आफ्टर मेकिंग दैट फिनिश गुड इन्वेंट्री में मैंने कन्वर्ट किया है, उसके बाद मैं एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर दूं जिससे मुझे वापस प्रॉफिट हो जाए. क्लियर? So there should be a good coordination between production house and the distribution of goods. Clear है? 10th top point है तुम लोग का, वो लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं. If financial institutions and banks provide fund to the as and when required, the need of working capital is reduced. If financial institution and bank provide fund, जैसे मैंने बहुत सारे सोर्सेस की बात की थी, वैसे ही ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सोर्स है. मैंने बैंक की बात की थी, शेयर्स की बात की थी. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक मुझे फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. मुझे जब मेरे कंपनी को, मेरे बिजनेस को जरूरत है, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत मेरी वहां पे थोड़ी कम हो जाए. क्लियर है यहाँ तक? राइट नाउ यहाँ पे मैं सेशन को एंड करती हूँ. आफ्टर दिस वील स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 1.4, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. टिल देन यहाँ तक प्लीज स्टार्टिंग का अपना फर्स्ट लेक्चर है वो, और यहाँ तक सब रिवाइज कर लो, एंड इफ देयर आर एनी डाउट वी क्लियर इट आफ्टरवर्ड. क्लियर? हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर से नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे. चलो बाय बाय.